Om. Okay, Sai Ram children once again. I hope you all are fit and fine. Yes? Today I am going to show you a video in which we will learn how we can protect ourselves from COVID-19. Right? So let's watch it. A small video. Let's see whether it will be working or not. Video. असेसमेंट का सबको क्लियर हो गया? असेसमेंट से रिगार्डिंग तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मैम किस किस चैप्टर से आएगा? मतलब पीरियोडिक 1 के बाद वाले ना? पीरियोडिक 1 के बाद वाले। पीरियोडिक 1 के बाद वाले हैं। Let's see. I am finding a video which I have seen yesterday. Okay. Take a quick look at this graphics to know what are the do's and don'ts. Yes, I am presenting my screen. We will watch a small video, then we start our class. As you all are knowing about it, है ना? And especially now festive season is coming, so we have to be more careful about all these things. ज़्यादा हमें safety measures का ध्यान रखना चाहिए. Let's watch it. Now these do's include frequent washing of hands, covering face while coughing and sneezing. It also includes throwing used tissues and waste bin, extremely important. Seeing doctor in case you feel unwell. You must avoid participation in large gatherings. It's an avoidable thing. And last but not least, contact the Ministry of Health and Family Welfare just in case fever or experiences or a problem in breathing, but remember not to panic. Now let's take a look at the don'ts also. Yes, not so panic, है ना? इस बात का भी ध्यान रखना है. Yes. So the don'ts include close contact with the person experiencing symptoms like cough and fever, touching nose, running nose, mouth and eyes, and also spitting in public should be absolutely with clean clothes and linen used by person separate using common household detergent. These are some of the important environmental sanitation procedures or advisory that need to be followed. And we of course will be updating you on. Take a quick look at this graphics to know what are the do's and don'ts. Yes. Yes, beta. So here we had a look for do's and don'ts, है ना? क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें? साक्षी कुजूर, what we should avoid?
ऑडिबल चिल्ड्रन? मैम पैनिक नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या नहीं करना चाहिए? और अरे बोलो, you have watched the video and even you are knowing also all these things. मैम क्या कार्तिकेय, क्या नहीं करना चाहिए बेटा ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन नाउअडेज, हाउ वी शुड कीप आवर सेल्फ प्रोटेक्टेड, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें, हमें क्या नहीं करना चाहिए? मैम जहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठे हो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। ओके, और अनमोल, बाहर से रुको रुको, सबसे पूछ रही हूँ मैं। अनमोल, मैम कभी भी बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के ही निकलना चाहिए। बिल्कुल मास्क हमेशा, और मास्क किस तरह से पहनना चाहिए? मैम ऐसे कि हमारी जो नोज और माउथ है वो पूरा कवर हो जाए। Yes. Nowadays we are observing कि people are not taking proper care. वो मास्क अगर लगा भी रहे हैं तो गलत तरीके से लगा रहे हैं। मास्क लगा होता है या तो उनकी नोज ओपन होती है या वो इस तरह से खसक के नीचे चिन पे रहता है, तो that mask is not useful at all. We should cover our mouth and nose properly. इस टाइप के मास्क का यूज होना चाहिए कि नोज और माउथ कवर्ड रहे अच्छे से, है ना? मास्क यूज करना, बट उसको सही तरीके से यूज करना और ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस चिल्ड्रन। महक, क्या करना चाहिए? मैम अपने हाथ 20 सेकंड तक धोना चाहिए। हाँ, कब? मैम कभी भी जब बाहर से आए। हाँ, बाहर से आए या कोई ऐसे सामान हम कुछ लेकर आए हैं तो उसके बाद भी हमको अपने हैंड्स को फ्रीक्वेंटली सोप और हैंड वॉश से क्लीन करना चाहिए, और अगर वो अवेलेबल नहीं है, हम कहीं बाहर है, तो हमें हैंड सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए विच मस्ट बी अल्कोहल बेस्ड, है ना? इस टाइप से हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर हमें लगता है कि हम बाहर गए, जाना ही पड़ गया है और कई लोगों के ऐसे कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आकर हमें वी शुड टेक बाथ। ये सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, ग्रुपिंग से बचना चाहिए, राइट? ओके, this was all about COVID-19, what safety measures we should take and what we should do and what we should not do. ये all about ये था, हमें डिस्कस करना था, because especially now festive season is coming, तो सब जनरली जाते ही हैं दिवाली वगैरह पे एक दूसरे से मिलने, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस साल, ठीक है? और दिवाली सेलिब्रेट करें लेकिन सेफ्टी के साथ। ओके, now we will come back to our studies as we were discussing about 8th chapter। 8th chapter को हम डिस्कस कर रहे थे, तो 8th में एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करना है, am I right? Yesterday we have discussed about how to make the table, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सीखी हमने कल। तो कितने बच्चों ने कल दोबारा बनाई मेरे सिखाने के बाद? मैंने आपके साथ ही बनाई। हाँ, कितने बच्चों ने बनाई, जरा जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिख सकते हो। महक ने, वेरी गुड। सौरभ, पूजिता, वेल डन। कार्तिकेय, अंजन, विशेष, शाबाश विशेष। सच्ची, तान्या, अनमोल, वेरी गुड। इतने बच्चों ने किया है, बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया भाई? रिपीट। अच्छा, जिन बच्चों ने बनाई उन्हें बनाते आ गई टेबल अच्छे से? हाँ, कोई दिक्कत आई टेबल बनाने में बेटा? नहीं है। बाकी जिन बच्चों ने नहीं बना के देखी है, वो बच्चे अगर आप बना लोगे आज तो ठीक है, नहीं तुम्हें फिर बहुत दिक्कत आएगी, समझ नहीं आएगी। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा तुम लोग इन चीजों पे ध्यान दो। ओके, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। 8.1 में किसी को कुछ दिक्कत है? एक्सरसाइज 8.1। जल्दी बताओ। एक्सरसाइज 8.1, हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट?
चिल्ड्रन आर यू देयर और नॉट? अभी बोलो, मैं अभी स्क्रीन शेयर में हूँ, अभी मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे हो. यू शुड स्विच ऑन योर माइक एंड स्पीक. यस मैम. में कोई दिक्कत है? Say yes or no so that I can start the next one. तुम तक कैसे पता चलेगा? 8.1 में कोई दिक्कत? नो मैम. बेटा क्लास. योगेंद्र, हैव यू जॉइंड नाउ? अभी ज्वाइन किए? इसमें 18 से आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई? ओके, लेट्स सी इट. स्क्रीन शेयर नहीं किया है मैंने अभी. Yes. Is it visible, beta? Book is visible to you? Yes, ma'am. Now, in this chapter, read the chapter Introduction to Trigonometry. Yes. ये सब तुमने साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये हमने डिस्कस किया था. हाँ, ये बहुत जरूरी है. ये तुमने पढ़ा या नहीं पढ़ा? द फर्स्ट यूज ऑफ द आइडिया ऑफ साइन इन द वे वी यूज इट टुडे वाज इन द वर्क आर्यभट्टम. आर्यभट्ट ने किया है भाई. ये किसमें किया था उन्होंने? ये आर्यभट्टियम बाय आर्यभट्ट इन AD 500. आर्यभट्ट यूज द वर्ड अर्ध्यजा. हाँ, हिंदी में जो इसको बोलते हैं अर्धज्या, जीवा, ज्या, ये सारे इनके वर्ड्स हैं जो तुम साइन कॉस टेन बोलते हो ना. अर्धज्या फॉर द हाफ कॉर्ड and which was shortened to ja or jiva in due course. Then when the Aryabhattiam was translated into Arabic, the word jiva was retained as it is, and the word jiva was translated into sinus, और साइनस का शॉर्ट होके वो बन गया साइन, जिसको तुम अब साइन थीटा बोलते हो. which means what? इसका मतलब क्या होता है? कर्व, है ना. When the Arabic version was translated into Latin, soon the word sinus, also used as sine, became common in mathematical texts throughout the Europe. An English professor of astronomy, Edmund Guntur, first used the abbreviated notation sin, SIN. तो तब से फिर ये चल रहा है. और the origin of the terms cosine and tangent was much later. सबसे पहले आया था साइन का फंक्शन, फिर उसके काफी समय बाद cos और tangent. ये सब कुछ इसमें दिया है, तुमको पढ़ना जरूर चाहिए. Aryabhatta called it cotija. The name cosinus originated with Edmund Guntur in 1674. The English mathematician Sir John Murray first used the abbreviated notation cos. ओके, ये सब तुमको इसमें गिवन है, तो इसको ज्या और कोटिज्या और कोज्या और इस तरह से बोलते हैं हिंदी में. क्या तुमको सब पढ़ने समझने की जरूरत है? अब ये भी देखो. It is clear that the values of trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the sides of the triangle if the angle remains the same. ठीक है, उसकी लेंथ से उसमें वेरिएशन नहीं आता है क्योंकि रेशियो है, वो रेशियो विल बी सेम. अब ये तुमने फर्स्ट एग्जांपल कर लिया था, जैसे 10a = 4/3 है. फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो 10a, यू कैन सी हियर दिस ABC इज अ ट्राइंगल. तो a अगर तुम लेते हो एक्यूट एंगल, तो 10a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस. a के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा इस फिगर 8.8 में? CB. BC है ना. BC विल बी परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर हो गया. अपॉन में क्या आता है 10 के लिए? बेस. बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस कौन होगा एंगल A के लिए? AB.
तो 10a की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब BC अपॉन AB। अब BC अपॉन AB, अब BC अपॉन AB मतलब ये कितना गिवन है, 4/3, मतलब ये हो गया क्या 4 और ये हो गया 3। अब हमको क्या चाहिए, अदर एंगल्स, मतलब हमको साइन A चाहिए। साइन A के लिए क्या रेशियो होता है, हम साइन ए के लिए हाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। P upon H. हाइपोटेनियस P अपॉन H। तो A के लिए P हो गया BC और H है AC, तो AC तो हमारे पास है नहीं, तो AC निकालने के लिए बेटा इस राइट ट्राइंगल में पहले तुम लगाओगे पाइथागोरस। देखो इस तरह से पाइथागोरस लगा के इसकी वैल्यू निकाल लोगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कितना, 16 प्लस 9 25, यानी AC की वैल्यू हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा 5। ये K इज जस्ट अ कांस्टेंट, इसको तुम लिखो तो भी है ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही तुमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, तुम साइन A निकाल सकते हो, कॉस A निकाल सकते हो, और बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉट है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 का 3/4 हो जाएगा, कॉट निकल गया, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, और सेक थीटा निकालने के लिए कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इस तरह से बाकी एंगल्स आ जाते हैं। ये थी तुम्हारी 8.1, ऑलमोस्ट ऐसा ही थे सारे क्वेश्चन इसमें। इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन इन 8.1? किसी को है? नो मैम। ठीक है, तो अब हम 8.2 स्टार्ट कर रहे हैं। सो फॉर 8.2 वी विल नीड द वैल्यूज ऑफ the angles of 0 degree, 30 degree, 45 which we discussed in the table yesterday. कल हमने किया था टेबल, मैंने ये तुम्हें एक्सप्लेन की थी। सो गए लगता है, सो गए क्या? नहीं मैम, हाँ मैम करी थी। तो हाँ या ना कुछ तो बोलो, मुझे लग रहा है मैं स्क्रीन को पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम। एक जागा है नींद से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल। सौरभ की तो आवाज ही ऐसी लग रही थी कि एकदम जागा नींद से। हाँ मैम ऐसे बोलते हैं। चलो, और एक तो जागा है, बाकी तो शायद नींद में ही है अभी। कितने जाग गए, जरा अपने जागने का सबूत दे दो। मैम जगह हुए। मैम जगह है। यस मैम। ठीक है, ओके। चलो, वो तुमने कहावत सुनी होगी ना, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। तो जो सो रहे होंगे ना अभी, वो उनको कुछ आने जाने नहीं वाला है, फिर समझ लेना। ठीक है बेटा, तो ये है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज करके नाउ वी विल सॉल्व द, यू कैन सी दिस एग्जांपल। इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. So read it. Tanya, you read. In triangle ABC, right angled at B, AB is equals to 5 centimeter and angle ACB is equals to 30 degree. Determine the lengths of the sides BC and AC. BC and AC की हमको निकालनी है साइड। अब देखो, this is a right triangle which is right angled at B. right angled at। अब ACB 30 डिग्री दिया है, और ये है हमारा परपेंडिकुलर। हमको पता चल गया, क्योंकि अगर C की बात करें तो AB क्या है, Perpendicular. BC will be base and AC will be hypotenuse। ठीक है बेटा, अब 30 डिग्री में हम कोई भी एक रेशो ले लेते हैं। जैसे ही तुम एक रेशो लोगे और 30 डिग्री की वैल्यू तुम्हें पता है, जैसे हमने कोई भी रेशो लिया, यू कैन टेक साइन, यू कैन टेक कॉस, यू कैन टेक टेन, है ना। तो टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, अब पूछा क्या, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC। तो BC की अगर बात करें तो BC हमको पता करनी है और AB पता है। तो AB और BC क्या है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होते हैं, 10. तो बस इसके 10. लिए हम किसका रेशियो ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABC वी विल टेक 10C। C
10C वो टिंडे वाली सब्जी नहीं, 10C, सी वाली, ये एंगल सी की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, अगर 10 थीटा लिखना है, इसमें थीटा है सी, तो 10C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, अपॉन बेस कौन है, BC। इसी BC। ये 3-4 बच्चे ये जवाब दे रहे हैं, बाकी क्या दही जमा के बैठे हैं मुंह में? बाकी की आवाज क्यों नहीं आ रही मुझे? मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ तब भी आवाज से मुझे समझ आ रहा है कौन कौन मुझे जवाब दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। सारे बच्चों का मुझे आंसर रिप्लाई आना चाहिए। हाँ, तो BC हो गया बेस, तो AB अपॉन BC। अब AB तो हमको पता है हो जाएगा 5, BC भी नीड टू फाइंड, और 10C, C मतलब ये थीटा, कितने डिग्री है C एंगल? 30 30 तो ये हो जाएगा 10-30 डिग्री। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10-30 डिग्री बेटा? 1/√3। 1/√3। वो टेबल हमने कल बताई थी ना, उसे हम यूज करेंगे। वैसे व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चंस तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। और सबसे ज्यादा बेटा हमको जरूरत पड़ती है एक तो 10-30, 10-60 और 10-45 की। तो 30 क्योंकि छोटा एंगल है, 30 और 60 में छोटा कौन है, 30, तो 1/√3 ऐसे याद रखना, और 10-60 की होती है √3। ओके, तो अब 10-30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो BC आ जाएगा इधर और ये हो जाएगा 5√3। तो यहां से आ गया BC इज इक्वल्स टू 5√3। ये दूसरा तरीका है। पहले एक्सरसाइज में you were having two sides and by using Pythagoras you were getting the third side. Now here only one side is given but one acute angle is given. So here we will apply now trigonometric angles वाला जो है वैल्यू वो यूज करेंगे हम। तो 30 डिग्री का एंगल है तो 10 थीटा लगाया इसमें। इसमें तुम साइन कॉस कुछ भी लगा सकते थे पहले, है ना। अब BC की वैल्यू आ गई, अब AB और BC आ गया है, तो तुम पाइथागोरस लगा के AC को फाइंड आउट कर सकते हो, या तो फिर कोई और दूसरा रेशियो लेके भी कर सकते हो। अब जिसमें हमको चाहिए हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के लिए कौन सा रेशियो ले सकते हो तुम? साइन थीटा भी ले सकते हो और कॉस भी ले सकते हो। क्यों साइन या कॉस, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, बताओ। मैम उनके में आता है ना मैम, जैसे मैम साइन होगा उसके परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। हाँ, और वैसे मैम कॉस हो जाएगा, उसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। हाँ, अब क्योंकि हम बेस फाइंड आउट कर चुके हैं, अगर सबसे पहली बार तुम लेते जब हमको BC पता नहीं है तब तुम कौन सा रेशियो ले पाते साइन और कॉस में से? अभी तुम्हें BC अगर पता नहीं है तो साइन थीटा। क्यों साइन ही क्यों ले पाते, कॉस क्यों नहीं ले पाते? मैम क्योंकि उसमें हमें बेस नहीं मालूम था, और जो कॉस्ट था उसका रेशियो बेस और हाइपोटेनियस को इंक्लूड करता है, इसलिए। हाँ, इसलिए यस। तो अगर तुम सबसे पहले ले रहे हो तो तुम साइन थीटा लोगे, लेकिन अब क्योंकि हमने BC फाइंड आउट कर लिया ये 10 थीटा का लगा के, तो तुम अब साइन भी ले सकते हो और कॉस का रेशियो भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो अगर तुमने इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होगा? शुभी तुम बताओ। शुभी इज देयर इन द मीटिंग? Yes, ma'am. हाँ Ma'am, बेटा, sin, हाँ, ma'am, sin 30 degree. साइन थीटा कितना हो जाएगा? Sin theta. हाँ, 30 डिग्री मतलब C, थीटा कौन है यहाँ पे? C। See, yes, ma'am. AB upon BC. नहीं, साइन का रेशियो क्या होता है बेटा? 1/2. अरे बच्चे, साइन थीटा साइड्स का रेशियो, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इन तीनों में से कौन आता है साइन थीटा के लिए? Yes, ma'am. Sin theta के लिए मैम perpendicular upon hypotenuse. हाँ बेटा, तो परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पर? मैम AB. और हाइपोटेनियस कौन है? AC. हाँ, तो क्या आएगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB upon AC. यस, AB अपॉन AC। तो AB है 5, AC हमको पता करना है, और साइन 30 की वैल्यू हमको पता है टेबल से देखकर। बताओ अभी, तो बाकी प्रैक्टिस में तुम्हें आ जाएगा। वैसे होगा शायद 1 बाय कितना है? 1/2।
हाँ यस मैम 1/2 हो जाएगा इसका और मैम उसका मैम 1/2 होगा sin 30। बस तो देखो sin 30 इक्वल्स टू AB अपॉन AC लिखा, sin 30 की जगह sin 30 की वैल्यू लिख दो 1/2। AB हमको पता है 5, AC नहीं पता है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया AC। तो ये तुम बिना पाइथागोरस लगाए भी अदर टू साइड्स पता कर सकते हो इफ यू आर नोइंग एनी वन ऑफ द एक्यूट एंगल। और अल्टरनेटिवली AC को तुमने इस तरह से निकाला है, वैसे भी कर सकते हो, या फिर एक साइड पता चल गई है, एक गिवन थी इसमें, AB गिवन थी, BC तुमने निकाल ली है, तो थर्ड साइड तो पाइथागोरस लगाकर भी निकाल सकते हो। तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes. ये था एग्जाम्पल 1। ऐसे ही है तुम्हारा एग्जाम्पल 2। चलो जल्दी से एग्जाम्पल 2 करो तो अपनी नोटबुक में, राइट नाउ यू शुड डू, जल्दी से करो। एग्जाम्पल 2 सारे बच्चे करेंगे। मैं एग्जांपल 2 हाँ अब भी करना है, अब भी के अब भी, तुरंत। हो गया? क्या पूछा है यहाँ पे? 2 sides are given and you are asked find the angle QPR। QPR, हाँ बताओ। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ, क्योंकि तुम्हारा ही हुआ है अभी कंप्लीट, बाकी तो कर रहे हैं, बताओ। मैम इसमें ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो उसमें 2 साइड्स की वैल्यू दे दी गई है। अब हम लोग को एंगल QPR की वैल्यू निकालनी है और एंगल PRQ की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम लोग PRQ को थीटा लेते हैं तो PRQ के हिसाब से जो PQ है वो उसकी परपेंडिकुलर है और PR हाइपोटेनियस है। तो ये जो इसका रेशो या तो हो सकता है साइन थीटा के टर्म्स में या हो सकता है कोसेक थीटा के टर्म्स में। तो अगर हम लोग इसको ऐसे साइन थीटा लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी क्योंकि साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 होता है। और उसके बाद जब हम लोग को वो एंगल RQP मतलब QPR की वैल्यू निकालनी है, एंगल P की, जो हम लोग उसको थीटा लेकर रखेंगे तो PQ उसके लिए बेस हो जाएगा और PR उसके लिए हाइपोटेन्यूज। इतना करने की जरूरत है, ट्राइंगल है वो, राइट ट्राइंगल है, तुमने 2 एंगल पता कर, एंगल एक सम 90 प्रॉपर्टी। डिग्री है तो वो 30+60 ऐसा भी हो सकता है। हाँ यस, है ना। उसको तुम इतना, ये तुम जो बोल रहे थे पहले उस तरीके से भी निकाल सकते हो। अदरवाइज व्हाट कैन बी डन, एक एंगल पता कर लिया है तो दूसरा हम जो है रिमेनिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। अब देखो बेटा, जिसको समझ नहीं आया है एक बार देख लो। हियर 2 साइड्स आर गिवन, तो ये तो फिक्स है बेटा कि PR कौन है, परपेंडिकुलर। अरे PR कौन है? Hypotenuse. Hypotenuse. Yes, PR is hypotenuse because side opposite 90 degree। तो ये तो फिक्स है, इसकी तो फिक्स है कि ये हाइपोटेन्यूज है।
अब अगर हमसे कौन से एंगल पूछे, क्यूपीआर मतलब एंगल पी पूछा है और पीआर क्यू मतलब एंगल आर पूछा है। तो जब अगर हम एंगल आर की बात करें, ये वाला, अगर, क्योंकि इससे जल्दी समझ में आ जाता है, तो अगर ये वाला बेस एंगल थीटा आर लेते हैं तो आर के लिए पी क्यू हो जाएगा कौन बेटा, परपेंडिकुलर, और ये पी आर हो जाएगा कौन, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, P अपॉन एच किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा। यस। और यहाँ थीटा कौन है, अभी थीटा कौन ले रहे हैं हम, आर को थीटा, हाँ गुड, आर को ले रहे हैं थीटा, तो साइन आर हो जाएगा, है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर इन्हें पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस इन्हें पी आर, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। अब यहाँ थीटा कौन है, आर है, तो साइन आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। अब इसकी वैल्यू रख दो, पी क्यू कितनी गिवन है 3, पी आर कितनी गिवन है 6, तो साइन आर इज इक्वल्स टू 3/6। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/2। अब साइन आर इक्वल्स टू 1/2, आर है मतलब थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा, टेबल में देखो साइन थीटा की साइन 30, हाँ 30 डिग्री पे, है ना, साइन 30, 30 डिग्री पे, तो साइन 30, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एंगल आर मतलब कि पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल आ गया कितने का, 30 डिग्री का, ये 30 का आ गया, ये तो 90 का है ही, तो तीसरा एंगल सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल लो, ये आ गया एंगल क्यू पी आर। ओके, क्लियर है। मैम मैंने सोचा था कि हमें सेकंड एग्जांपल करना था। तो ये सेकंड एग्जांपल है, ये फर्स्ट एग्जांपल पहले ये वाला और सेकंड एग्जांपल यही तो है, तुमने कौन सा कर लिया, मैम ये 7th है शायद। एग्जांपल नंबर 2। चलो ये एग्जांपल नंबर 7 है, मतलब बेटा इस एक्सरसाइज के पहले तो सेकंड नंबर पे ही है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले। ओके मैम। चलो ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो, और नहीं तो फिर एंगल सम नहीं लगानी है तो ज्यादा घूम के और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। फिर इसको जब P को एंगल लोगे तो P को थीटा लोगे तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी cos P इक्वल टू 1/2। अब cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे, तो भी वो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, वैसे करके भी निकाल सकते हो या सिंपल एंगल सम से। क्लियर है बेटा, एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करना, मेनी अ टाइम्स यू विल गेट दैट एग्जाम्पल्स आर देयर, है ना, एग्जाम्पल इसमें आए हुए हैं, तुम लोग देखना। ये बेटा इधर 26 स्टूडेंट्स हैं, इधर 19 ही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है अटेंडेंस में क्या दिक्कत है, चलो मैं नेम लास्ट में पूछ लूंगी। तो अब एग्जाम्पल थर्ड नंबर का एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम्पल 8 देखते हैं हम। इफ साइन a माइनस बी, अब यहाँ पे थीटा कौन है बेटा, a माइनस बी, ध्यान से समझना, है 1/2, और cos a प्लस बी भी है क्या 1/2, जबकि a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, मतलब दोनों एंगल्स को ऑब्वियसली तुम ऐड करो तो ये ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री होगा, राइट। बचे हुए कोई भी हम राइट ट्राइंगल में अगर रिमेनिंग टू एंगल का सम लेंगे तो ऑलवेज इट विल बी आइदर लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो। क्यों होगा ऐसा, कैन एनीवन एक्सप्लेन। मैम क्या, ये a प्लस बी के यहाँ कंडीशन लिखी है ना, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ये बता सकते हो ऐसा क्यों। मैम आप बता दीजिए। ओह मितुषी, हाँ बोलो, आवाज मैम वो राइट एंगल ट्रायंगल है।
हाँ महक सही बोल रहे। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या महक? तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो बाकी के दोनों 90 डिग्री से कम के होंगे। कम या फिर 90 के इक्वल होंगे, है ना? ओके, उससे ज्यादा नहीं होगा। यस, ठीक है। तो ये इसलिए कंडीशन दी है और a इज ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से ज्यादा है। अब हमको a और b एंगल फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। साइन a माइनस b है 1/2। इसका मतलब जो भी साइन थीटा है, a माइनस b कौन है? थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? मैम एंगल जब 30 डिग्री का होता है। साइन 30 पे। अब यहाँ डायरेक्ट लिखा है, तुम ऐसे लिखना बेटा, साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 लिखा। फिर नेक्स्ट स्टेप में यू शुड राइट साइन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री। 1/2 को तुम लिख सकते हो साइन 30 डिग्री? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? यस मैम। हाँ, तो 1/2 की जगह ये जो RHS में 1/2 लिखा है ना, इसकी जगह लिखना साइन 30 डिग्री। अब दोनों तरफ साइन से साइन कैंसल, तो क्या आ गया? साइन से साइन कैंसल हो गया, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आया सबके पास? लिखते जाओ नोटबुक में। मैम हो गया सॉरी। हाँ, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री आया। यस मैम। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं। व्हाट एल्स इज गिवन? cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब इसको जो पहले आया है a माइनस बी इक्वल टू 30, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो as cos a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। अब cos a प्लस बी को मान लिया हमने थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? मैम cos 60 डिग्री पे। cos 60 डिग्री पे। तो इस तरफ RHS में तुम पहले ये लिख लोगे, फिर RHS में लिखना cos 60 डिग्री। cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। दोनों तरफ cos से cos कैंसिल, तो क्या आ गया? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसको दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, किया इतना सबने? यस मैम। तो अब एक इक्वेशन हमारी a माइनस बी इक्वल्स टू 30 और दूसरी है a प्लस बी इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या करोगे? ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या करोगे? मैम ऐड करेंगे। हाँ, डायरेक्ट ऐड कर दो क्योंकि b अपोजिट साइन में, तो b वाला कैंसिल हो गया। 2a इक्वल टू 90 है ना? 2a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। और a की वैल्यू किसी भी एक में रख दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। इजी है? यस मैम। इस टाइप के क्वेश्चंस और करना प्रैक्टिस। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। जैसे लिखा है साइन 60 cos 30, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। यस मैम। और Yes, cos ma'am. और cos 30 भी सेम ही होती है, शायद √3/2 ही होगी। यस मैम। यस मैम। क्या लिखोगे? √3/2 इंटू √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 हो गया तुम्हारा 1/2, cos 60 भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? मैम आंसर क्वेश्चन 1 लिखो हो गया। जल्दी से। हाँ, क्वेश्चन लिखो जल्दी से कॉपी में। तो √3/2 इंटू √3/2 करोगे तो कितना आएगा? 3/4। मल्टीप्लाई 3/4। 3/4 आएगा, शाबाश। और प्लस 1/2 इंटू 1/2 करोगे तो 1/4। 1/4। 1/4। ठीक है, तो 3/4 प्लस 1/4 कितना हुआ? 4/4। 4/4 कितना आंसर हो गया? 1। 1, है ना? बस इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है बेटा? जैसे 2 है तो 2 इंटू 10 स्क्वायर 45। अब 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। देखो टेबल में कितनी है 10 45 की वैल्यू? 1। मैं तो सामने ही बैठी हूँ स्क्रीन पे, अभी स्क्रीन भी वही चल रही है, कहीं पेज ऊपर नीचे कुछ नहीं है, और मेरे आसपास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है नहीं। हाँ, 10 45 की वैल्यू है 1 और उसका स्क्वायर करना है,
तो स्क्वायर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1, 1 मतलब 2 इंटू 1, फर्स्ट टर्म आ गई 2 इंटू 1 यानी 2, समझ में आ रहा है? यस मैम। प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 4, तो कितना हुआ 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 मैम सेम कट √3/2 जाएगा। का स्क्वायर करोगे तो 3/4, तो ये 3/4 से 3/4 कट गया और इधर बचा तुम्हारा 2 इंटू 1 यानी आंसर कितना आया 2। 2, है ना? तो मैं इसका सोल्यूशन बता देते हैं तुमको। जस्ट वेट, रखिए। क्या हो गया? हम्म 8.2 वी आर डिस्कसिंग ना? यस। अभी तुम्हें लिखा हुआ बता देती हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यस, ये देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इज इट विजिबल चिल्ड्रन टू यू? यस फर्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिया था। ये √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 सॉल्व किया, ये आया 1। अब देखो सेकंड पार्ट, 2 10 स्क्वायर 45, तो 2 इंटू 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखा और इसका स्क्वायर है इसलिए 1 का भी स्क्वायर। 2 का नहीं कर देना गलती से, स्क्वायर सिर्फ 10 का है, 10 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है। प्लस, तो ये प्लस एज इट इज। cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया। माइनस साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू लिखी, उसका स्क्वायर कर दिया। इसीलिए टेबल बनाना आना चाहिए। एग्जाम में तुम्हें टेबल गिवन नहीं होगी, तुम्हें ये वैल्यूज खुद से पता करनी होगी। अब ये 2 इंटू 1 2 हो गया, 3/4 माइनस 3/4 कैंसल। ये इतना इस तरह से एलसीएम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है, सिंपली डायरेक्टली यही कैंसिल कर सकते हो तुम। 3/4 से 3/4 कैंसल, आ गया 2। See the third part, cos 45 upon this तो cos 45 की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे 1/√2 अपॉन sec 30 क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 हो गया 2। अब नीचे तुम्हें एलसीएम लेके पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3। अब अपॉन के अपॉन में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू √3 अपॉन 2 प्लस 2√3। इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। बस इसको यहीं पे ऑलमोस्ट छोड़ देना, देख लेना क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 3 मार्क्स का है तो इतना आगे फिर जैसे 9th में तुमने किया था ना रैशनलाइजेशन, वैसे करना। अगर 2 मार्क्स का है अप टू 2 मार्क्स इतना करके छोड़ना। ओके, ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन तुम इस एक्सरसाइज में कर सकते हो। तो ये तुम्हें एक उसका दिखाना था। अब ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। तो अब ये वैल्यू तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। 2 10 30 की वैल्यू रख दो, फिर 10 स्क्वायर 30 की, इसको सबको सॉल्व करके देखना जो वैल्यू आएगी। अगर मान लो तुम्हारे पास आता है √3/2, तो √3/2 क्या होता है साइन 60। अगर 1/2 आता है तो 1/2 क्या होगा cos 60। सिर्फ √3 बचता है तो √3 होगा tan 60। मतलब इसको तुम सॉल्व करोगे वैल्यूज रख के और फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग। देखो 2 10 30 है तो 2 इंटू 10 30 की वैल्यू रख दी अपॉन 1 प्लस इसकी वैल्यू रख दी। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया तो आंसर आया √3/2। √3/2 मतलब कितना होता है मैम √3/2 साइन 60।
sin 60 है ना। तो बस करेक्ट ऑप्शन क्या है फर्स्ट वाले में, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह से इसको क्वेश्चन नंबर 2 को तुम्हें सॉल्व करना है। बस इसमें 2 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। मैम 4 है। 4 है। मैम वो लास्ट वाला तो ट्रू और फॉल्स है मैम, उससे पहले एक है बस। तो ठीक है, वो तो तुम कर, हाँ ये ट्रू एंड फॉल्स लास्ट वाला है, ये तो तुम खुद से बता सकते हो कि इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। ट्रू फॉल्स तुम्हें खुद से करना है। और उससे पहले क्या है, ये a+b वाला ये क्वेश्चन, ये मैंने अभी जो एग्जांपल करवाया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से होगा। थर्ड क्वेश्चन 10a+b वाला ना। यस मैम एकदम सेम है। बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा ही है, एज इट इज है। सो इन दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। अब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो है नहीं, है ना। यस मैम हट गया। वो हट गया है। तो अब हमारा इस चैप्टर में बच जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आइडेंटिटीज ही होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मस्ट बी देयर आफ्टर दिस। यस, तो हम वही है। हाँ नेक्स्ट क्लास में, तो फ्राइडे सैटरडे में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब मंडे, ज्यादा से ज्यादा मंडे बस। मैम 8.2 नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? 8.2 2 तो करेंगे बेटा, 3 नहीं करेंगे। 3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट हट गया है तुम्हारा इस साल के लिए। ये रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये हट गया है। लेकिन तुम इसको एक बार देख जरूर लेना, ये इसमें से आएगा कुछ नहीं, बट जिसको आगे मैथ्स पढ़ना हो तो एक बार देख लेना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये हट गया है। सिंपल है कि ये है 90, तो बचा हुआ क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर एंगल सी निकालना है तो तुम सी को 90 माइनस ए लिख सकते हो, ए निकालना है तो ए को 90 माइनस सी लिख सकते हो, बस वो है। खैर ये हट गया है तो इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके 8.3 नहीं करना है हमें, 8.4 है, 8.1 और 2 दोनों है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इससे ज्यादा तुम डोज झेल नहीं पाओगे। हाँ अर्चित मैंने देख लिया तुमने पीडीएफ भेजी है, जो भी पीडीएफ वगैरह भेजे वो इसी में भेजे। अभी बच्चे 26 थे, अभी एक बार मैं नाम बोल रही हूँ, जरा जिसका नहीं आए वो बता देना। साक्षी, तान्या, साक्षी धाकड़ है ना, तान्या, अर्चित, मितुषी, सची, सिमोन, इशिका, साक्षी, हुजूर, अनमोल, इशाक, जतिन, महक, वेदिका, विशेष, सौरभ, आशना, शुभी, नुपुर, कार्तिकेय। कौन बच गया? मैम मैं त्र्यंबकेश। त्र्यंबकेश और मैम इशिका गुप्ता। अंजन। त्र्यंबकेश, इशिका गुप्ता, पूजिता गुप्ता, अंजन। ये बेटा जरा एक नाम अंजन तुम अभी मुझे व्हाट्सएप कर देना, ये सारे नाम अंजन, पूजिता, त्र्यंबकेश, और अभी करना तुरंत जब मीटिंग लेफ्ट करोगे। सिमोन का भी नहीं आया है शायद। मैम आ गया। सिमोन का आ गया? मैंने लिया सिमोन तुम्हारा नाम? हाँ है। अंजन, पूजिता, इशाक नहीं, त्र्यंबकेश, अंजन, पूजिता, त्र्यंबकेश, और कौन था? इशिका गुप्ता। 4। मैम मेरा और त्र्यंबकेश का है। मैम नीचे कहाँ है? हाँ त्र्यंबकेश का दिख गया, अंजन का भी दिख गया। अभी 23 हो गए इसमें, पता है। अब कौन बचा? इशिका गुप्ता और पूजिता। मैम मेरा भी आ गया। पूजिता का भी आ गया, इशिका गुप्ता का भी आ गया। चलो ठीक है, पर 3 बच्चे और होना चाहिए क्योंकि मैंने 26 देखे थे। चलो ठीक है, लेट इट बी। मैम शिवम भी था शायद। हाँ मैम शिवम भी था शायद। शायद नहीं, कंफर्म है तो बोलो। मैम पहले देखा था मैम, वो था। मैम बीच में ज्वाइन किया था उसने। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए रहा होगा इसीलिए उसका नाम नहीं है। चलो ठीक है, ओके। क्या?
मैम एंड में भी था। अच्छा शिवम, यस मैम। ठीक है, आई विल चेक, अदरवाइज आई एड हिम. Okay, now we will conclude with Shanti part. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy, and keep on practicing maths. Yes, Sairam, now you can leave the meeting. Thank you, ma'am. Saira, ma'am. Sairam, beta, Sairam. क्यों नहीं हो रहा है? मम्मा